ये आकाशवाणी है। स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान के लिए नामांकन भी होने लगे हैं। उत्तराखंड की राजनीति में भी रोज नए नए रंग दिख रहे हैं। यही हाल पंजाब, गोवा और मणिपुर का भी है। इन राज्यों में और कैसे हैं चुनावी हालात, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इन सभी राज्यों से आकाशवाणी संवाददाता मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं पूर्वोत्तर के छोटे से राज्य मणिपुर, जहां चुनावी हलचल तेज होती जा रही है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता थॉकचम जेजे। वेलकम थॉकचम जी। थैंक यू उमेश जी। हाउ इज इलेक्शन फीवर गोइंग सो फार इन मणिपुर? The election fever in Manipur is going on in high manner. The general election to Manipur Legislative Assembly will be held in 2 phases, Umesh. The first phase, in which voting for 38 assembly constituencies will be held on 27 of February, which notification will be issued on 1st February. Umesh, the poll of the remaining 22 assembly constituencies will be held on 3rd March in the second phase, and the counting of votes for both the phases will be conducted on March 10. The Office of Chief Electoral Officer Manipur has taken up all necessary arrangements for free and fair polls, and they have also published the final photo electoral rolls, and training for poll personnel is going on across the country. BJP is seen as a prominent party in the state. They are targeting 40 plus seats in the forthcoming elections. The interesting fact is that some sitting MLAs and leaders of other parties have also joined BJP recently. The Congress is seen as a rival party to BJP in the state, and the NPP, National People's Party, is also going to field candidates in many constituencies this time. Thokcham ji, what are main election issues in this state? The main election issue will be the maintaining of law and order in the state, along with the progress in development. As we have seen in the last 5 years, during the regime of BJP, development has reached to the expectation of people, and the law and order has improved. So now the BJP party has been echoing these 2 facts in most of their election rallies. Thank you, Thokcham ji. Thank you, Umesh. अब चलते हैं मणिपुर से खूबसूरत समुद्र तटीय राज्य गोवा, जहां 40 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। गोवा में भी चुनावी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। गोवा की राजधानी पणजी से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता मुकेश थाली जी। हाउ इज द इलेक्शन जोश इन गोवा? The election josh has picked up today, the momentum of electioneering, because today BJP has announced first list of 34 candidates out of 40 names, and automatically now the activity is getting a push, a jerk in Goa. Tomorrow nominations will be the start of nomination filing. What are main issues in this beautiful state? एक तो अभी माइनिंग का इश्यू पहले था, इट इज इन द कोर्ट, सो नो वन कैन स्पीक अबाउट इट. माइनिंग, इट वाज द मेन इकोनॉमिक बूस्टर वाज माइनिंग. अनदर इज tourism, that is also there. There was some problem with the tourism because there was COVID pandemic. So again now various options of tourism are on, various types of tourism, can be ecotourism, hinterland tourism, and they are trying to come out with the new avenues on tourism. And the third one is unemployment, which is always there. In Goa, there are 2 new parties who are going to participate current election. One is TMC, Trinamool Congress, and another is Aam Aadmi Party. What about them? For the first time that these 2 parties are contesting debutants in this assembly election, and they are playing a key role because other candidates are also there of BJP and Congress. Political experts say, they surmise that they may get some seats like that. So because it will be tough for the first time, there will be heat among these parties. Okay ji, this is first election going on without Manohar Parrikar ji. What are impact without him? He was so simple and used to go to working very hard, and all the constituencies he would visit and be with the voters, eat with them, and he was so simple and dynamic, and he was guiding force. Even last time I personally saw, even during the government formation and all, his absence is very much felt by public as well as the party, because he was like a transformer. थैंक यू मुकेश जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी इस छोटे से खूबसूरत राज्य की। खूबसूरत समुद्री शहर पणजी से अब चलते हैं उत्तर भारत के खूबसूरत शहर चंडीगढ़, जहां
से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता अश्विनी जी, जो पंजाब के चुनाव पर हमें सारी जानकारी देंगे। किस तरह से वहाँ चुनावी माहौल तेज होता जा रहा है, क्या क्या इश्यू आ रहे हैं सामने? पंजाब में चुनाव को लेकर इस बार काफी राजनीतिक दल मैदान में हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस से अलग होकर अपना एक नया दल बना चुके हैं और अकाली दल के कुछ लीडर उन्होंने भी अलग होकर अपना संयुक्त अकाली दल बनाया है। और संयुक्त अकाली दल और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में है। तो सीटों को लेकर इनमें समझौता हुआ है, ऐसा जानकारी मिली है। अभी इन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करना बाकी है। उधर श्रोमणी अकाली दल मैदान में है, उन्होंने ऐलान कर दिया है उम्मीदवारों का और उनके साथ बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन है। और दूसरी तरफ कांग्रेस भी है। और कांग्रेस में अगर देखें तो राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर काफी राजनीति उनके पार्टी के अंदर ही हो रही है। एक तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो वहीं चंद्र सिंह चन्नी भी मैदान में है। इनके अलावा वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ भी मुख्यमंत्री का दावा करते हैं, लेकिन फिलहाल उनके हाईकमान की तरफ से हरीश चौधरी ने कहा है कि पार्टी फिलहाल किसी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं करेगी। और यहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है तो वो भी काफी सरगर्म है। उन्होंने भगवंत सिंह मान जो संगरूर से सांसद हैं, उनको अपनी पार्टी का चेहरा मुख्यमंत्री का घोषित कर दिया है। और क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा रखा है रैलियों को और बड़ी भीड़ वगैरह इकट्ठा करने को लेकर, तो ज्यादातर जो चुनाव प्रचार है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और सोशल मीडिया पे चल रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोगों में अभी असमंजस की स्थिति है, कोई साफ तस्वीर अभी सामने नहीं आ रही। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दल बदल दिख रहा है, वहाँ भी कुछ ऐसा हुआ है? जैसे कि सोनू सूद की जो बहन है मालविका सूद, उसको मोगा से कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो वहाँ से जो कैंडिडेट हैं, पहले जो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस के, तो वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। और ऐसे और भी बहुत से लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं छोड़ के अलग अलग पार्टियों से। और ये सिलसिला चल रहा है। अगर हम यहाँ गुरदासपुर सरहदी जो एरिया है, तो कादियान से थे सिटिंग एमएलए फतेह जंग सिंह बाजवा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, क्योंकि उनके जो भाई हैं, जो सांसद हैं प्रताप सिंह बाजवा, वो कादियान से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वो भाई भाई का जो मामला है आपस में, तो उसको लेकर वो पार्टी ही छोड़ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी, आपने बहुत कम समय में पंजाब की इतनी सारी जानकारियां हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चंडीगढ़ से चलते हैं गोरखपुर, जहां उत्तर प्रदेश की चुनावी जानकारियों के साथ मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता आदित्य शुक्ल। आदित्य जी, क्या हालात हैं गोरखपुर से? योगी जी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, भारतीय जनता पार्टी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। इसका क्या असर आपको नजर आ रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश में? पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास करके गोरखपुर, वाराणसी और पूर्वांचल का ये जो पूरा क्षेत्र है, इसमें इस समय चुनावी गतिविधियां तेज हो गई हैं। और इसी के साथ साथ अभी सभी पार्टियों का जोर पूरी तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव 10 फरवरी को वहां होना है। तो उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया भी कल समाप्त हो रही है। तो सभी पार्टियां अभी इस समय रणनीतिक गठजोड़ में व्यस्त हैं। अपने पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो रही है। जैसे आज ही कांग्रेस ने अभी 41 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। तो पहले चरण के मतदान के लिए लगभग सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी हैं। अच्छा, ये बताइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही आजमगढ़ आता है और आजमगढ़ की गोपालपुर सीट से प्रमुख विपक्षी नेता अखिलेश यादव के लड़ने की चर्चा है। एक तरफ योगी, दूसरी तरफ अखिलेश यादव। तो इन दोनों के चुनाव लड़ने का, जैसा कि कयासबाजी ही है अभी अखिलेश के बारे में, क्या असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश में खासकर पूर्वांचल में काफी पकड़ रखते हैं। जैसे योगी आदित्यनाथ का गढ़ी है गोरखपुर सदर सीट से इस बार वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और गोरखपुर के आसपास की ही कुशीनगर और आजमगढ़ भी आसपास ही है। यहाँ के ये जो विधानसभा सीट हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर से लड़ना जरूर पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी को रणनीतिक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। इसके अलावा आजमगढ़ से, क्योंकि आजमगढ़ में 2017 का जो विधानसभा चुनाव था, वहाँ से अधिकतम सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी। तो कह सकते हैं कि अगर अखिलेश यादव आजमगढ़ को अपनी सीट चुनते हैं तो वहाँ उनकी पार्टी को और मजबूती मिलने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मुद्दे इन दिनों हावी होते हुए नजर आ रहे हैं चुनावी माहौल में? इस समय पर पार्टियां जोर शोर से चुनाव
प्रचार में जुटी हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं की जा रही हैं। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा किया है और इसके साथ साथ आज एक और घोषणा करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि वो पुरानी पेंशन योजना उत्तर प्रदेश में लागू करेंगे। ऐसी घोषणाओं की क्या प्रतिक्रिया आपको जमीनी स्तर पर नजर आ रही है? लोगों का कहना है कि ये सब तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि पार्टियां घोषणाएं तो बड़ी बड़ी कर देती हैं, लेकिन एक बार चुनाव जीत कर आती हैं तो वो उस पर ध्यान ही नहीं देती। अपने मैनिफेस्टो लाती हैं, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उसमें, और चुनाव के बाद से फिर उन पर अमल नहीं किया जाता। लेकिन इसमें मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव के दौरान एक बात पर बहुत जोर दे रही है। वो ये है कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लगातार बार बार कहा है कि वो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कराएंगे। वाराणसी जैसे शहरों में जो धार्मिक स्थल हैं, खास करके पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण केंद्र हैं उत्तर प्रदेश में, वहां का सौंदर्यीकरण कर उनको एक पर्यटन के मैप में बड़े स्तर पर लाने के लिए वो लगातार प्रयासरत रहे हैं और इसकी उन्होंने घोषणाएं भी कई चुनावों में की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता इस समय इस बात पर विशेष जोर दे रहे हैं कि उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का जो निर्माण चल रहा है उसे पूरा करके उन्होंने अपने उस वायदे को पूरा किया है। तो और प्रमुख दल हैं जैसे कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, उनकी क्या स्थिति है? जमीनी स्तर पर वो कैसे नजर आ रहे हैं? कांग्रेस ने इस बार शुरुआत जब हुई है चुनाव प्रचार की, तो इससे पहले कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में काफी सक्रिय दिखी हैं। कांग्रेस का अगर हम जमीनी स्तर पर देखें तो पिछले कई दशकों में धीरे धीरे करके उनका पार्टी संगठन कमजोर हुआ है। पार्टी ने इस बार एक और घोषणा किया जिसमें प्रियंका गांधी ने कहा है कि हम 40% महिलाओं को जी अब तक की जो 2 सूची आई हैं उसमें बड़ी संख्या में उन्होंने महिलाओं को टिकट भी बांटे हैं। क्या बाकी दलों पर इसका असर दिख रहा है? हाँ, कह सकते हैं कि कुछ तो इसका दबाव पड़ा ही है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में तो खुद एक महिला ही उस दल को लीड कर रही हैं और समाजवादी पार्टी एक अलग चुनावी गठजोड़ के साथ इस बार मैदान में उतर रही है, जहां छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने गठजोड़ किया है। हाँ, अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रैली की थी जिसमें उन्होंने विशेष रूप से मेरठ में विशेष रूप से महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत की थी। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने महिलाओं की बात करके सारी पार्टियों को दबाव में ला दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी, आपने बहुत सारी जानकारियां दी इतने कम समय में। अब चलते हैं देहरादून, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं आकाशवाणी संवाददाता राघवेश पांडे। सबसे पहले ये बताइए कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है विधानसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने आज 59 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और मोटे तौर पर जो 10 जो सिटिंग एमएलए थे उनके नाम बदल दिए गए हैं और नए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और कांग्रेस की भी उम्मीदवारों की सूची पर मंथन जारी है। उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात या कल तक उनकी सूची आ जाएगी। तो दो जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां हैं उत्तराखंड में, कांग्रेस और भाजपा, दोनों ही की उम्मीदवारों की सूची आते ही चुनाव सरगर्मी बढ़ जाएगी। फिलहाल कोरोना को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैली शुरू कर दी है, उसकी आज तीसरी रैली थी। कांग्रेस भी वर्चुअल रैली की तैयारी में है और जो यूकेडी है, बसपा है, सपा है, वामपंथी दल हैं, ये लोग जनसंपर्क पर जोर दिए हुए हैं क्योंकि पब्लिक रैली पर रोक लगा रखी है चुनाव आयोग ने कोरोना के संक्रमण को देखते हुए। आम आदमी पार्टी का क्या रुख है, कैसा? आम आदमी पार्टी की ओर से भी जनसंपर्क का तेजिस किया जा रहा है और क्योंकि पहली बार यहाँ पे चुनाव में उम्मीदवार खड़े करेगी आम आदमी पार्टी, तो उसका भी फोकस है कि जो परिवर्तन की बात करते हुए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करते हुए अपना स्थान बना सके। और इस संदर्भ में दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल की रैली हो चुकी है। फिलहाल उनके वरिष्ठ नेता जनसंपर्क अभियान में लगे हुए हैं। पहाड़ के बारे में कहा जाता है कि पहाड़ का पानी और जवानी उसी के काम नहीं आता है और हर चुनाव में मुद्दा ये बनता रहा है। इस बार ऐसा है क्या? पहाड़ की पानी और जवानी की बात की जाती है, हर चुनाव में मुद्दा बनता रहा है, लेकिन इस बार कुछ अलग मुद्दा है, बेरोजगारी है, पलायन, इसको लेकर भी। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की जो सत्तारूढ़ अभी है, पार्टी का दावा है कि पलायन को रोकने के लिए भी काम किया गया है। उस पर केंद्र सरकार की कई सारी स्कीम, उसका भी सहारा मिला है। कुछ लोग लौटे भी हैं, जो रिमाइग्रेशन हुआ है, मतलब लोग पहाड़ में लौटे हैं। कोरोना संक्रमण में भी कुछ लोग जो बाहर से लौट के आए यहाँ रोजगार कर रहे हैं, लोगों को जीविका भी दे रहे हैं। तो एक मुद्दा वो है, लेकिन जिस ढंग से विकास के काम हो रहे हैं उससे लगता है कि इस बार मुद्दे में बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद राघवेश जी, आपने इतनी सारी जानकारियां उत्तराखंड के चुनावी माहौल के बारे में दी। 5 राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव के ताजा हालात और चुनावी मुद्दों पर केंद्रित आकाशवाणी समाचार की प्रस्तुति में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।
अभी आप सुन रहे थे 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विशेष कार्यक्रम, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता उमेश चतुर्वेदी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।